Okay. Hello, guys. Welcome back to our YouTube channel TNP PC. I will be very happy if you take a moment and subscribe to our channel below. I'm Ritika Khere, your host for today from second year CTech department. I want to welcome you all on today's Mulakat and interaction with placed student. Today, our session is organized by Training and Placement Department of Priyadarshini College of Engineering. First of all, I would like to thank our principal, Dr. S.A. Dhale sir, our vice principal, Dr. G.A. Masoodkar sir, our dean, Training and Placement Department, Dr. S.W. Varade ma'am, our co-dean, Dr. S. Chaturvedi ma'am, and our event in charge, Professor Satish Tiwari sir. The key objective of this event is to be familiar with the interview process and to get a feel for how the process works on campus and off campus, as well as to understand the rules and regulations of a professional employment interview. So, for this, today we have with us Mr. Shashwat Gere. He has done his engineering in civil branch and he is placed in Home First Finance Company. So, without wasting any time, let's get started. Hello, Shashwat. Good evening. Hello, Ritika. Good evening to all. Thanks for giving me this chance to express my views regarding these placements. Thank you. I hope you all are doing great. Okay, Shashwat. So, tell me, why did you choose engineering and why civil engineering? Well, actually, there are so many reasons, but the main reason is that I have always had an interest in this field, and as my family members and siblings also are in this field, I love the work they are involved in, and there is a very vast scope in this field to explore your knowledge and skills, because you see in whole world globally the designing and the structural analysis of the structures are very immensely vibrated, and you can see the job opportunities. For example, I will give an example. In Dubai, civil engineering is a very important stream in a country like Dubai, and you know that engineers are problem solvers. At the time of Three Idiots, actually I was also influenced from Rancho from Three Idiots. Okay, that's a very interesting reason to choose civil engineering. So, as I was curious to know, what was your other extracurricular activities in college days? Okay, in college days, I actually like to play tabla, cricket, badminton, and various sports. I also have taken part in cultural events in the guidance of under the guidance of Satish Tiwari sir, and I also like traveling, photography, and exploring various places, not only in India but in abroad also. And also, I love financing. That's what. That's why I have chosen this finance company, and I love stock market in very well manner. Okay, that might have helped you learn many new things. Yes, Okay, yes. so let's talk about your placement round. What were the rounds that you faced before getting placed? Actually, there were three rounds. First, it was of group discussion (GD). Then, second was PI round. It is called as personal interview, which was conducted by HR. And third round was of also conducted called as personal interview, which was conducted by MD and CEO of that company. So in first round, 10 students were chosen for group discussion, and HR had given us the topic that the lessons you learned from COVID pandemic. So the lessons we have to talk about, we had talk about that uh, uh, means related to finance. The It was my chance. See, when discussion is conducted, try to speak at the initial and end with your chance. So first I have started and I told them that mediclaim and health insurance is very important, because as a very
excuse me, as we have seen that whole world struggled in this pandemic, and no people don't have any means financial background to face this situation. So medical claim and health insurance should be primarily you should have them properly. And see, health insurance is not expenditure, it is essential investment. मैंने उनको यही बोला था एक्चुअली, मीन्स यू शुड गिव द इंटरव्यूअर व्हाट दे नीड. तो मैंने उनको बोला कि जैसे एसेट एलोकेशंस जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एसेट एलोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे यू शुड हैव सम अमाउंट ऑफ फंड्स इन ए लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विडिटी. मतलब जैसे ये हो गया विड्रॉ इंस्ट्रूमेंट, अगर इजी टू विड्रॉ इंस्ट्रूमेंट में हो गया, वैसे एलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर मैंने उनको बोला था कि जैसे ई पेमेंट्स हो गया, पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, ये मोदी जी ने जैसे किया था, तो वो पहले से किया था इसलिए फिर इजी हो गया था सबके लिए. तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था. और उसके बाद जैसे इट वाज आफ्टर जीडी I was qualified for personal interview round, and that was conducted by HR. So mainly HR see your body language and your confidence, how bold you face them, and actually also they ask questions related to your CV. What you and the main thing in CV, that is you should don't put everything in CV. You should be proper with and to the point with your CV. एंड जो आपने सीवी में डाला है वो आपको सब 100% पता रहना चाहिए, ऐसा सीवी को अच्छे से बनाना चाहिए. तो उन्होंने दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीवी. आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए, द प्रोजेक्ट्स वी हैव डन इन थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, एंड वही उसी के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे. एंड थर्ड राउंड वो भी पर्सनल इंटरव्यू, इट वाज आल्सो पर्सनल इंटरव्यू. उन्होंने एक्चुअली थर्ड राउंड में आई वाज लास्ट इन द क्यू, और उन्होंने मुझे पूछा कि लास्ट में कि आप लास्ट हो तो कैसा लग रहा है. तो मैंने रिप्लाई किया कि आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड. सो दे आल्सो स्माइल्ड. और यही मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू में. और उन्होंने फिर वही क्वेश्चंस वो पूछते हैं, वो आपको दे पुट यू इन सम सिचुएशंस जिसका आपको अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए. और जैसे कि मुझे उन्होंने पूछा था कि आज हम यहाँ पे आए, तो व्हाट मीन्स टेक्निकल ये इन्वॉल्वमेंट कैसी होनी ज़्यादा होनी चाहिए थी. जैसे जीडी हो गया, पर्सनल इंटरव्यू 1 हो गया, पर्सनल इंटरव्यू 2 हो गया, तो ये टाइम मिनिमाइज करने के लिए आप और क्या क्या आइडिया दे सकते हो. तो मैंने बोला वी शुड यूज द सोर्सेस लाइक गूगल मीट और अदर फॉर योर जीडी राउंड्स and HR rounds for primary basis. फिर they also asked me that was there a need of personal interview round 1 and GD. तो मैंने हाँ बोला, क्योंकि मैंने उनको ऐसे ही आंसर दिया कि जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो मेरे लिए फाउंडेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुपर स्ट्रक्चर है. तो वो मतलब एक्चुअली इट प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत रोल प्ले करता है. That's true. COVID time to था ही difficult for sure. So, coming back to the next question, as few people feel nervous during GD round, so how did you prepare yourself for this round? एक्चुअली व्हाट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इज कॉन्फिडेंस. आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. जैसे कि मैंने बोला था कि यू शुड स्टार्ट द जीडी एंड यू शुड एंड जीडी, बिकॉज क्या होता है, आप अगर पहले ही इनिशिएटिव लेते हो तो कॉन्फिडेंस भी अलग रहता है. और उसके बाद अवेयरनेस ऑफ टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयर कितने, अगर देखिए जीडी में मतलब अनप्रेडिक्टेबल रहता है, वो कोई भी टॉपिक दे सकते हैं एट अ टाइम एट दैट टाइम. तो आपको अच्छे से अवेयर रहना चाहिए और टेकिंग प्रॉपर मतलब इनिशिएटिव आपको एक्सप्रेस करते आना चाहिए उस टाइम पे. और सेकेंडली तो मतलब जीडी में द मेन थिंग दैट डोंट बी एग्रेसिव. यू शुड लिसन प्रॉपरली एंड यू शुड स्पीक व्हेन योर चांस कम्स. ऐसा नहीं कि बहुत मतलब वो एक ग्रुप डिस्कशन लगना चाहिए, वो एक फाइट नहीं लगनी चाहिए.
That's true. So, according to you, what are the do's and don'ts during interview? ओके, सो द डूज के बारे में बोलूँ तो डूज, यू शुड कैरी द प्रॉपर योर सीवी, योर 2-3 कॉपीज ऑफ सीवी विथ यू। उसके बाद आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंटरव्यूज हो गया, वो आपका कॉन्फिडेंस उधर से ही चेक करते हैं। आई कांटेक्ट हो गया, फिर आपकी मतलब सीटिंग पोजीशन, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो हो गया। उसके बाद आप कैसे खुद को एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। Okay, okay. How long was your interview round? Actually, group discussion was about 10 to 15 minutes, and personal interview one be 5-10 minutes, or personal interview to 15 minutes. Okay, okay. So, what were the technical questions you faced during interview? एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चंस तो अभी सिविल इंजीनियरिंग, जैसे आप जो भी आपकी ब्रांच है उसमें आपको एकदम, ये तो अभी जैसे दिस वाज फाइनेंस कंपनी, सो दे डिडंट आस्क मी मच मोर क्वेश्चंस अबाउट टेक्निकल, बिकॉज दे ओनली नो फाइनेंस, अबाउट फाइनेंस। बट यस, टेक्निकल क्वेश्चंस, जैसे उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू वन में मेरा थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट था, इट वाज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, उसकी स्टडी थी। तो उन्होंने मुझे, दे आस्क मी दैट what are the current rates of steel. At that time the steel was at peak, now it is at a good range. So वो भी एक आपके करंट रेट्स आपको मालूम चाहिए, जैसे ही मेरे स्ट्रीम हो गए। बाकी अप टू डेट रहना चाहिए हर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, क्योंकि जैसे ये कोर छोड़ के जो स्ट्रीम्स होते हैं, सी टेक हो गया, आईटी हो गया, बाकी उनको अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोर ब्रांचेस तो डेवलप भी होंगे, पर उनके सॉफ्टवेयर्स इतने ज़्यादा फास्ट डेवलप नहीं होते जितने सी प्लस प्लस मतलब लैंग्वेज सी टेक के वगैरह होते हैं, और उनको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। Okay, okay. So, should we go back to the comment section? There's one question by Lochan Futane. How to prepare for aptitude and logical reasoning? हाँ, गुड क्वेश्चन। मैं कहना चाहूँगा कि आपको जैसे ही आपके जो 4 ईयर्स है इंजीनियरिंग के, आपको फर्स्ट ईयर तो फुल एंजॉय करना चाहिए। उसमें कुछ इतना स्टडीज़ का लोड नहीं लिया तो भी चलता, पर सेकंड ईयर से आपकी जर्नी चालू होती है कि आप आपको कौन-सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये 2-3 1-2 साल तो मिनिमम लगते ही है, क्योंकि यू आर कॉम्पिटिटिंग विथ योर कंपेनियंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो जैसे गेट हो गया, एमपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इसमें जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इसके लिए आपको सेकंड ईयर से ही या फिर थर्ड ईयर से ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देयर आर मेनी बुक्स, नाउअडेज यूट्यूब से बहुत सारे सोर्सेस है, फ्री में अवेलेबल है, आप उसका पूरा मतलब एडवांटेज ले सकते हैं। That's right. Okay, so my question from my side will be, how do you keep yourself motivated if you faced any rejections in your life? Not particularly interview, any sort of. मोटिवेशन एज सच तो मतलब रिजेक्शन को पॉजिटिव माइंडसेट से ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा समझना चाहिए वी गॉट एन अनदर चांस, डबल मेहनत करेंगे, डबल। एक्चुअली मैं जब कोई रिजेक्शन मिलता है तो मैं तो सीधा सॉन्ग्स लगा के थोड़ी देर शांत होके माइंड रिलैक्स करता हूँ, अच्छे से सॉन्ग्स, मेरी जो भी हॉबी है उसको करता हूँ। फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डिमोटिवेट नहीं होना है। अपन मतलब जहाँ पे वी लैक, वी शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, वी शुड keep proper, enhance our skills, and make next time a good one. Okay, okay. There's one more question in the comment section. Huzefa Sidhpurwala, why do you prefer this company and not any other tech giant? एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मुझे इन्होंने भी यही पूछा था, मतलब पर्सनल इंटरव्यू टू जो एमडी और सीईओ ने लिया था, उन्होंने भी यही पूछा, तो मैंने उनको बोला था कि बाय माइंड भले ही मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, पर बाय हार्ट आई लव फाइनेंसिंग। Okay. Another question by Huzefa. What was your mindset before the interview?
द माइंडसेट एज सच तो कुछ नहीं था, बस कॉन्फिडेंट था। एवरीथिंग इन लाइफ, बी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं कि होगा कि नहीं होगा, वो बाद में देखा जाएगा, पर होगा ही ऐसे ही मान के हर बार चलना चाहिए, फिर होता ही। पॉजिटिव Okay, एटीट्यूड okay. इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। That's true. So, I think what advice would you like to give to your juniors? जूनियर्स जो अभी फर्स्ट ईयर में है, उन्होंने तो अच्छा एंजॉय करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करनी चाहिए। बट यस, आफ्टर फर्स्ट ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स। सेकेंड ईयर से आपको थोड़े, आप कोर सब्जेक्ट्स में जाते हो, फिर एक बार कोर सब्जेक्ट्स में जाने के बाद आपको थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे गेट हो गई, एमपीएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, एमबीए हो गई, जिस भी फील्ड में जाना है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग लिया है तो आगे में ही इंजीनियरिंग कंटिन्यू करना है। आप फाइनेंसिंग में भी जाते हो, जैसे मेरा गोल फाइनेंसिंग में एमबीए करना है, और किसी का होगा, किसी का एक्टर बनना होगा। तो अपने टैलेंट को अच्छे से, ऐसा नहीं कि मेरा टैलेंट सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर वो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। और अभी से जो भी आपके स्किल्स डेवलप करना चालू कर दो, जब भी जैसे अभी सीटेक आईटी वाले होंगे तो वो लैंग्वेजेस सीखना चालू कर दो। जो कोर वाले होंगे उनको अगर कोर में इंटरेस्ट है तो ठीक है, उसके अच्छे स्किल्स डेवलप करो, या फिर वो भी शिफ्ट कर सकते हैं। और देयर आर ह्यूज स्कोप इन इंजीनियरिंग फील्ड। Okay. We should check for the comment section. Is anyone interested? You can ask your questions without any doubt. Audience, you can drop your questions. जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं. There is one question by Mrunmay Ate. What to do if you want to make your resume better than others? हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे रिज्यूम बेटर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका कंटेंट कितना है। मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। मतलब जो है उसमें आप 100% एफिशिएंट हो, उसके आप सब स्किल्स आपको आते हैं, और दैट इज मच, दैट इज मतलब वो सफिशिएंट है। Okay. There's another question by Sakshi. What are the challenges you faced during interview? ऐसा चैलेंजेस तो ज़्यादा नहीं रहते, पर यस, इंटरव्यू में ये रहता है कि आपको एट दैट टाइम वो सिचुएशन में, जैसे इंटरव्यूअर सपोज आपको कोई सिचुएशन में डालते हैं। उन्होंने मुझे एक और क्वेश्चन किया, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और जैसे तब समृद्धि महामार्ग बना था, तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप समृद्धि महामार्ग पे जा रहे हो और आपको आपके गाड़ी ने अगर किसी को हिट किया, तो आपको इंस्टेंट किसी को, अगर आपको कोर्ट में या फिर कहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप क्या बोलोगे? तो मैंने उनको सिंपली बोला कि मैं तो बोल दूंगा कि मैं पीछे सोया था, तो आई विल प्रिवेंट दैट मेजर। ये तो उन्होंने वो भी मतलब वो दे टेस्ट हाउ योर मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करते हो जाता। Okay. There's another question by Madhvi Kothekar. What preparations you have done from your side for placement? एक्चुअली एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं था, वो मतलब वो अंदर से ही था, क्योंकि फाइनेंस तो मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वो एज सच कुछ प्रिपरेशन, हाँ, पर जैसे कोई भी कंपनी आ रही है तो उसका पूरा एनालिसिस पहले से आप किया करो। बहुत स्टूडेंट्स यही मतलब करते हैं कि बैठ जाते हैं। कोई मतलब फर्स्ट राउंड जो आपका एप्टीट्यूड होता है वो देने के लिए, अगर देने के लिए देना होगा तो इतना मतलब कुछ उसका रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं रहता है। आपको अगर देना है तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए कंपनी का। जैसे एक फैक्ट बता दो, मेरे जो थर्ड इंटरव्यू लिया था वो एमडी और सीईओ थे, मुझे उस दिन नहीं पता था। मैं एक्चुअली एनालिसिस किया था, पर मुझे उनका नाम पता था, पर मुझे वो नहीं पता था कि वो ही मेरा इंटरव्यू ले रहे थर्ड राउंड पर। जब एज आई सेड कि मुझे स्टॉक मार्केट वगैरह में इंटरेस्ट है, तो मैं 2-3 दिन बाद जी बिजनेस देखा, तो वो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो उधर मैंने उनका नाम देखा और नीचे एमडी एंड सीईओ देखा, फिर मुझे पता चला अच्छा यही थे अपने जिन्होंने लिया था इंटरव्यू। Okay, okay.
Audience, if you have your any questions or query, you can ask from him. Okay, I think this much questions. So, heading towards the end of our session, it was a wonderful chat with you, Mr. Shashwat. Thank you. Thank you everyone for being with us. I would like to specially thank our today's guest, Mr. Shashwat Gede. I want to thank Rohan Bhure for poster, Aman for conveying messages, Surav and Sarvagya for YouTube and Google Meet link respectively, and whole team of training and placement of Priyadarshini College of Engineering for coordination and suggestions. I hope this was an illuminating session for you all. Have a great day ahead.